السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین العابدین قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی شیخ، سب خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ جی شیخ، ایک بحثی گیور کا مسئلہ تھا، تھوڑا اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ کیا؟ بحثی گیور کا ایک مسئلہ ہے جو درپیش آیا ہے، جی تو تھوڑا اس کے بارے میں آپ سے جانکاری چاہیے تھی۔ بتائیے۔ وضو کے تعلق سے ہے جی کہ مسئلہ نمبر 4 ہے، وضو کا بیان ہے، بھاگ نمبر 1 ہے اور پیج نمبر 40 ہے کہ اگر کوئی الٹا وضو کرے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا منہ دھو ڈالے اور اسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جاننا تھا، یہ الٹا وضو مطلب ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سے صحابی نے الٹا وضو کیا، یا اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں الٹا وضو کیا؟ یہ کہاں سے بات لائے؟ جیسے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ میں تو کہنا چاہتا ہوں یہ الٹا سیدھا وضو نہیں ہوتا ہے، نہ ہی الٹی سیدھی نماز ہوتی ہے۔ جو شریعت نے طریقہ دے دیا ہے پاک ہے، شفاف ہے، بالکل صحیح سیدھا سنت کے مطابق، اس سے وضو ہوگا نا۔ اب اس میں اپنی عقل ہم صحیح نہ لگا دیں گے کہ پہلے پیر دھو لیں، اس کے بعد ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد مسح کر لیں، لاسٹ میں مطلب وہ ناک میں پانی ڈالیں، بیچ میں کلی کر لیں، اس کے بعد کونیاں دھو لیں، الٹا سیدھا الٹ پلٹ کر کے کسی بھی طریقے سے وضو کر لیں۔ تو دین اتنا آسان ہے، اس کو زبردستی مشکل کاہے کے لیے کرنا؟ اس کو الٹ پلٹ کیوں کرنا سیدھے دن کو؟ مشکل کیا کیا ہے؟ تو مشکل تو یہی ہو گیا نا کہ دین ہمارا سیدھی بات بتا رہا ہے، ایسے وضو کرو۔ پورا بیان تو پڑھا ہوگا آپ نے، کسی اتنا ہی پڑھا ہے؟ جیسے پورا بیان پڑھا ہے یا صرف اتنا ہی پڑھا ہے مسئلہ؟ نہیں، مسئلہ جو اصل میں پوری ویسٹی زیور میں بہت سارے مسئلے اترے ہوئے ہیں، لیکن جو مسئلہ غلط ہے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ اب جو صحیح ہے وہ تھوڑی نہ پوچھوں گا۔ جیسے وضو سے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں مسئلہ؟ ہاں، وضو کے بیان میں ہے، بھاگ نمبر 1 میں پیج نمبر 40 سے۔ وضو کے بیان میں ٹھیک ہے، لیکن صرف یہی مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی پورا وضو کا بیان ہے؟ وضو کے بیان میں جو یہ مسئلہ جو یہ اترا ہوا ہے، کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ الٹ پلٹ الٹا سیدھا اپنے منمانے طریقے سے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا؟ جیسے وضو پورا بیان پڑھیے، پھر مسئلہ آپ کے خود بخود سمجھ ہے۔ میں نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے نا، مجھے تو کہیں نہیں ملا، اس میں تو بتا رہے ہیں کہ وضو ہو جاتا ہے۔ طریقہ یہ بتلایا ہے، تو وضو کا یہ طریقہ بتلایا ہے اس میں۔ وضو کا طریقہ ایسا کیا تو ہو جائے گا نا، تو کسی نے ایسا کیا تو اس کا ہو جائے گا، تو کون سی دلیل سے اس کا ہو جائے گا؟ جیسے نہیں ہوگا اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، اس کی دلیل یہ ہے، کبھی اللہ کے نبی نے الٹا سیدھا وضو نہیں کیا، کبھی کسی صحابہ نے الٹا سیدھا وضو نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کبھی الٹا سیدھا وضو نہیں کیا۔ جیسے کسی نے تو دعویٰ اشرف علی تھانوی کا ہے تو دلیل ان کے ذمہ ہوگی نا۔ یہ بتائیے آپ۔ بلا دلیل کی بات نہیں ہے، جیسے قرآن نے وضو کا جو طریقہ بتلایا ہے اور اس میں جن چیزوں کو دھونے کو ضروری وہ تو فرض بتایا ہے نا، لیکن سنت طریقہ جو امی عائشہ بیان کر رہی ہیں، نبی کی بیوی بیان کر رہی ہیں، صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں، نہیں بتلایا نا۔ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا، پہلے آدمی اپنے ہاتھ دھوئے گا، اس کے بعد اپنے کلی کرے گا، پھر ناک میں پانی ڈالے گا، پھر چہرہ دھوئے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ دھوئے گا، یا سیدھے پیر دھو لے گا، بیچ میں کلی کر لے گا، پھر کونی دھو لے گا، پھر مسا کر لے گا، الٹا سیدھا وضو کر لے گا؟ مطلب یہ اشرف علی تھانوی صاحب ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ الٹا سیدھا وضو کرنے سے بھی ہو جائے گا وضو؟ ویسے آپ بھی نہیں ہوتے ہیں کچھ ان کو کہنے والے، لیکن وضو ارے ہم تو ہیں نا، ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ الٹا سیدھا وضو نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی صحابہ، اللہ کے نبی، تابعی، تابعین، ائمہ کرام نے کبھی الٹا سیدھا وضو نہیں کیا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس مسئلے کی، کیونکہ انہوں نے اچھا، تو اور کون سی دلیل نہ ہے؟ کیا صاف صاف آپ کو مطلب کہیں پہ وہ لکھا ہوا چاہیے کہ الٹا سیدھا وضو نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو الفاظ کے حساب سے چاہیے؟ جب اللہ کے نبی نے عمل کر کے بتا دیا تو ویسا کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں سنت طریقہ انہوں نے نہیں بتلایا نا،
सुन्नत का जो तरीका है वो भी उन्होंने तफसील के साथ लिखा है। अशरफ अली थानवी साहब ने सुन्नत तरीका बताया, वो चीज हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये बता दिया कि उल्टा सीधा वजू करने वाले का भी वजू हो जाता है, कैसे वजू हो जाता है, उसकी दलील क्या है? जैसे एक चीज मुझे बतलाइए, जैसे आजकल टंकी का जमाना है, ठीक, टंकी से नहाने वगैरह का, किसी ने वजू नहीं किया शुरू में, ठीक, टंकी खोल के बैठ गया, नहा लिया, उसके पूरे बदन उसके जो है भीग गए, बदला है, उसके लिए अब फिर से वजू करना जरूरी है। अगर वो बगैर वजू के नमाज पढ़ ले उसी गुस्से से, तो नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, उसको वजू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? भाई अगर उसका पूरा बदन भीग गया है, बाल बराबर सूखा नहीं है, और अगर वो अपने मतलब वो नंगे हाथ की हथेलियों से अपनी अगली और पिछली शर्मगाह को नहीं छूता है, तो वो नमाज पढ़ सकता है वजू करके। उसकी कोई दलील है? अब फिर वजू करेगा तो वजू तो करेगा ना, वजू उसने किया कहाँ, वो तो टंकी के नीचे बैठ गया ना, वो गुस्ल उसका हो गया, वजू नहीं हुआ ना। वजू नहीं हुआ? कैसे वजू हुआ? नहीं हुआ, कोई दलील है आपके पास इस तरह वजू नहीं होगा? अगर तरह कोई नहा ले वजू न करे पूरा? अरे हाँ बिल्कुल, अल्लाह के नबी जब मेरे भाई जब अपनी बीवी से सोबत करते थे और उसके बाद जब जाते थे नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, तो अल्लाह के नबी पहले अपनी शर्मगाह धोते थे, फिर अपने हाथ को जमीन से साफ करते थे, उसके बाद दोनों हाथों को धोते थे। ये नहीं पूछ रहे हैं भाई, तो सुनिए समझिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम जो आपसे पूछ रहे हैं आप हमें उतना बता दीजिए। उलट पुलट करके उल्टा सीधा वजू करना, और यहाँ तक कि बहस्ती जेवर में एक जगह उतरा हुआ है कि उल्टी सीधी नमाज अगर कोई पढ़ ले तो उसकी नमाज भी हो जाती है। यानी कि पहले कोई सलाम कर ले, बाद में रुकू कर ले, उसके बाद कयाम कर ले, उसके बाद सजदा कर ले, तो मतलब उल्टा वजू कर ले तो भी जायज है, उल्टी नमाज पढ़ ले तो भी जायज है। ये उल्टी खोपड़ी वाली कौन सी बात है? नमाज के बारे में, उल्टी नमाज के बारे में हवाला दे सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, ये बहस्ती जेवर में भी उतरा हुआ है और दुर्रे मुख्तार में भी उतरा हुआ है। बहस्ती जेवर में बतलाइए, हवाला बतलाइए बहस्ती जेवर का। हाँ, हवाला मैं आपको स्कैन अभी भेज रहा हूँ आपके नंबर पे। आपको हिंदी पढ़ना आता है ना? अभी बतलाइए। अभी मुझे देखना पड़ेगा ना, अभी तो मैंने जिस मसले के ऊपर मैंने फोन किया है उसका मैंने आपको हवाला दे दिया है। बिना देखे अभी आप कह रहे हैं ना? अरे ऐसे तो आपकी बहस्ती जेवर में उतरा हुआ है शौहर के लापता होने के बयान में कि अगर किसी का शौहर खो जाता है तो वो औरत शौहर के 90 साल होने तक का इंतजार करेगी। वो हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, तो फिर बहस्ती जेवर में तो बहुत सारी बातें हैं। जिस मसले के लिए आपने हमारे पर फोन किया है, कुल मिला के आपके नजदीक उल्टा वजू करने पे वजू हो जाता है ना? यानी कि बिना दलील बात मानना आपके वहाँ जायज है? नहीं, बिना दलील में बात हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई। आप हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, जैनुल आब्दीन साहब बोल रहे हैं? जी, आप कौन सर? हाँ भाई, मैं अप्पू खान बोल रहा हूँ। आपसे मसला पूछा था बहस्ती जेवर का, तो आपने बताया नहीं। मुझसे कभी पूछा था सर? भाई कल ही आपसे बात हुई थी, अगर याददाश्त आपकी तेज हो तो। जैनुल आब्दीन कासमी साहब बोल रहे हैं ना? नहीं सर। अच्छा, नहीं भाई असल बात ये है ना, बहस्ती जेवर में मसला उतरा हुआ है, मसला नंबर 4 है। अगर कोई उल्टा वजू करे कि पहले पाँव को धो डाले, फिर उसके बाद मसा करे, फिर दोनों हाथ धो ले, फिर अपना जो फेस है मुंह को धो ले, और किसी तरह उलट पुलट करके वजू करे तो भी वजू हो जाता है। वजू का बयान भाग नंबर 1 पेज नंबर 40। तो ये जानना था कि उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा वजू हो जाता है बेतरतीब, इसकी मतलब दलील क्या है? नहीं होता। नहीं होता तो ये बहस्ती जेवर में क्या सैफ अली थानवी साहब ने अपनी अकल से लिख दिया? इसमें हमारे खिलाफ साजिश थी। इसमें हमारे खिलाफ साजिश। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आप मानते हैं कि ये मसला जो है ये गलत है, कुरान हदीस के खिलाफ है? इसी में लिख दिया है, हमारे फैसले में।
अरे बैस्ती जेवर में उतरा हुआ है मेरे भाई, वो भी बैस्ती जेवर आज से भाई नहीं छप रही है, 50 सालों से भाई ये छपती आ रही है। ठीक है, देवबंदी औरतों को ये दहेज में दी जाती है, देवबंदी औरतें लोग इसको पढ़ती हैं, अमल करती हैं। पुराना नुस्खा आप उठाएं, नए पे मत हम्म, पुराना नुस्खा आप उठाएं, नए को मत रखिए। भाई बैस्ती जेवर आपके मसलक की किताब है, आपके अकाबिर ने इसको लिखी है, उसमें लिखा हुआ है बेतरतीब अगर कोई वजू करता है उल्टा सीधा तो वजू हो जाता है। आप कह रहे हैं ये एक साजिश है, तो साजिश तो इसका मतलब अशरफ अली थानवी ने की है ना। नहीं सर, आप गलत समझे नहीं, कोई हमारे खिलाफ जो है किताबें कोई, अरे मेरे भाई फिर वही चीज देवबंद से छपी हुई है, देवबंद प्रिंट है, कोई भी कर सकता है। छापने वाले भाई देवबंदी, पढ़ने वाले देवबंदी, पढ़ाने वाले देवबंदी, अमल करने वाले देवबंदी, तो साजिश कौन करेगा? मैं आपके खिलाफ कोई छपवा दूँ उसमें आपका तो मेरे खिलाफ आप छपवा दीजिए तो मैं फौरन में एक्शन लूंगा ना। मैं कोई, ये तो सैकड़ों साल से किताब छपती आ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, इसका दिफा भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हो ये साजिश है। ये तो आपकी बात समझ वाली है, आपकी बात समझ वाली है। हाँ हो सकता है शायद मुझे गलती हो गई हो तो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आपने मान लिया कि असाबिर से आपके अशरफ अली थानवी साहब से गलती हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप मुझे समझ लीजिए हजारों में एक ऐसे आदमी मिले हैं जिसने वाकई गलत को गलत कहा है, वरना बाकी देवबंदी तो गलत को भी सही साबित करने के लिए कुरान हदीस का उल्टा सीधा इस्तेमाल करने लगते हैं। चलिए खैर ठीक है। एक बात पूछना था मैं। जी पूछिए। यहाँ पे कुछ लोग जो है इससे पहले से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको क्या समझ रहे हैं मुझे वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बस एक कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, या कुछ रात इमाम से पूछ लिया मुस्लिम का ही, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो अभी जैसे कि यहाँ पे बरेली देवबंदी है, अलग वगैरह, तो लोगों में चलता रहता है, कहते हैं कि यजीद जो है गलत है, तो कहते हैं यजीद जो है वो अक्सर है, अली इमामी है। कौन? तो अभी यजीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अच्छा यजीद। हाँ, तो मतलब ये बरेली यहाँ पे जो बोला ऐसे गलत तरह बोल रहे थे, तो फिर एक ऑडियो मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा कि अमीर इमामी है वो, मतलब इमाम ने उनसे बैठ कर ली थी, तो क्या ये बात सच है? भाई देखिए, हमारे नजदीक हम इस मामले में सुकूत इख्तियार करते हैं। सुकूत यानी कि खामोशी इख्तियार करते हैं, ना हम उनको गाली देते हैं, ना उनके ऊपर लालतान करते हैं, और ना उनसे बहुत ज्यादा मतलब हम शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। ठीक, उनका मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, हम इस बारे में कोई अपना कमेंट हम नहीं करते हैं। हमसे पहले जो कौमें जा चुकी है उनका हिसाब अल्लाह करेगा, हमें अपने अमाल को देखना है। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे लानत करना चाहिए, आपको लानत करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, मेरा कहना है इसमें आए कि इमाम हुसैन जो है ये मतलब है कि बैठ की थी, तो क्या बात ये है गलत है? भाई मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, एक ऑडियो की पहली तरफ आया था या तो उन्होंने बोला था कि वो एक अपने जो है नदीम बुरहानपुरी करते हुए उन्होंने कहा कि ये हौसला लेने की इमाम हुसैन की बात की थी। जी उनकी अपनी तहकीक होगी, उनको इल्म होगा इस बारे में। हमें अभी मेरी इस मौजू पे ज्यादा तहकीक नहीं है, और ना मैं इस मौजू को मतलब ज्यादा छेड़ता हूँ। तो क्या आप उनकी तहकीक से मुख्तलिफ हैं या मुतफिक हैं? देखिए, हम नदीम खान भाई के ना तो मुकल्लिद है ना कुछ, अब उनकी तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह सही होगी तो हम उसको मानेंगे, नहीं सही होगी तो नहीं मानेंगे। बाकी मेरे नजदीक तो भाई मतलब ये है कि हम भाई लालतान करने के तक हम खिलाफ हैं, और बाकी भाई अमीरुल मोमिनीन तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थे ही, और वो ऐसे लश्कर में थे जिसको मतलब भाई अल्लाह ताला ने मतलब बशारत दी थी कि मतलब जो मतलब इस उसके लश्कर के हैं वो जन्नती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में हमें मालूम सब है, लेकिन हम इस मौजू पे वो अपना हम जबान नहीं खोलना चाहते हैं। नहीं, काफी सारे मतलब बरेलवियों के मिर्चे लग जाएंगे,
जो हर करबला के टाइम हर मुहर्रम में मेले लगा के जो गालियां देते हैं और लालच बरसाते हैं, तो हम इस मौजू से थोड़ा एहतियात करते हैं। हाँ जी, नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत गुनहगार इंसान हूँ, तो मैं किसी की बोलूँ तो गलत है ना, तो अपने आप नहीं, जो गलत है गलत को गलत बोलिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी के जो प्यारे नवासे थे, उनका जो भी असली कातिल हो, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला की मतलब बेशुमार लालतें हों, फरिश्तों की बेशुमार भाई वो मतलब इस कायनात में जो कोई भी भाई वो मखलूक है, सबकी लालत हो उसके ऊपर, जो कातिल हो। लेकिन कातिल कौन है ये पहले इंसान पहले पता कर ले। अब जबरदस्ती नहीं, वो ये फला ने वो यजीद ने मारा, यजीद ने कत्ल किया, जबरदस्ती कोई सबूत नहीं, कोई तारीखी हवाला नहीं, बेसनद बातें, तो ये सब गलत है ना। जो असली कातिल है इस मैटर में ये हुआ है, आजकल लोग क्या है पता है, आजकल कंटप्पा ने बाहुबली को काहे के लिए मारा ये सबको मालूम है, आप समझ रहे हैं। कंटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये सबको मालूम है, लेकिन मतलब अल्लाह के नबी के जो प्यारे नवासे थे उनका कातिल कौन है, ये बात वो लोग सुनी सुनाई बात पे मान लेते हैं। अगर कोई कातिल है तो उसके लिए गवाह चाहिए। अब गवाह भी भाई 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं देखने वाले चश्मदीद गवाह, एक होते हैं सुनने वाले, एक होते हैं जिनसे लोगों ने बताया हो। तो तीनों गवाह हैं, तीनों गवाहियां मौजूद है। किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ भाई ये फला आए थे यजीद ने आके कत्ल किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बीच वालों ने फायदा उठा लिया, आप समझ रहे हैं। अच्छा ये बरेली क्या माफी होता है कि यजीद ने घर से कत्ल नहीं किया, लेकिन इशारा उसी का था, तो वो भी इस पर मुत्तफिक है, तो मुत्तफिक है तो वो भी सजा का आइल है, वो ये कहते हैं। तो हम कह तो रहे हैं ना कि अगर उनका हाथ होगा, अगर यजीद का अगर कत्ल में हाथ है या वो मतलब कत्ल की साजिश में वो थे, तो अल्लाह सुब्हानो तआला की उनके ऊपर भाई वो लालत हो। और अगर वो कातिल नहीं थे और जो लोग जबरदस्ती उनके ऊपर जानबूझ के लालसान कर रहे हैं, उनके ऊपर अल्लाह की लालत हो। हम तो कातिल पे लालत भेज रहे हैं ना, वो कोई भी हो सकता है। जी ये तो आपने एकदम दुरुस्त। नहीं सिर्फ एक बरेलवी से मेरा कुछ वो हो गया था मुकालमा। देखिए बरेलवी लोगों के मुंह ना लगा कीजिए, क्योंकि उनकी अक्ल बहुत ज्यादा होती है और इल्म बहुत कम होता है, आप समझ रहे हैं। अक्ल बहुत चलाएंगे लेकिन इल्म से पैदल होंगे। अब जैसे आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको भाई ये बैस्ती जेवर का मसला मैंने बताया, आपने कहा कि हाँ ये जो मसला है भाई ये गलत है, क्योंकि उल्टा सीधा वजू हो ही नहीं सकता। ये कोई भाई ये कोई थोड़ी ना है कि आदमी पहले पैर धो ले, फिर अपनी कोहनी धो ले, फिर सर का मसा कर ले, फिर आंखों में पानी डाल ले, फिर कुल्ली कर ले, उसके बाद अपने मतलब भाई टखनों को धो ले, उसके बाद नाक में पानी डाल ले, तो उल्टा सीधा वजू नहीं होता है। जो दीन हमको अल्लाह के नबी ने दिया है एक तरतीब के मतलब स्टेप बाय स्टेप है कि पहले हाथों को धोएंगे, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, फिर चेहरा धोएंगे, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने ये मसला पता नहीं कहाँ से उतार दिया कि उलट पुलट अगर करके कोई वजू करेगा तो भी उसका वजू हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा भाई उसका वजू? उल्टा सीधा वजू क्या कभी किसी साहबा ने किया? क्या कभी अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ तुम उल्टा सीधा वजू के आजा खाली भिगो लो तुम्हारा वजू हो जाएगा? तो नहीं। तो यही दलील जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं हो जाता है, नहीं होने की क्या दलील है, तो वो उल्टा सवाल करने लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझा, आपने माना, आप समझदार आदमी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमें खुशी हुई। गलत है कि ये गलत की दलील बोलने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक अगर उल्टा कर रहा है वो तो कहीं से साबित नहीं है किसी ने किया, और अकली तौर पे गलत भी लगता है और लगता है। आप देखे ना जी हाथ भी स्टार्ट करता है, आज तक तो मैंने ना तो सुना है ना मेरे पास दोस्ती जो है पढ़ा हूँ, लेकिन ये जाहिर सी बात अगर किसी को आप बताएंगे तो यही कहेगा कि ये गलत है। ये हनफी फिका में भी उतरा हुआ है, हिदाया में, दुर्रे मुख्तार में भी, कि बेतरतीब अगर कोई वजू करता है उल्टा सीधा तो भी उसका वजू करना दुरुस्त है, यानी कि वजू उसका जायज हो जाता है। और यही मसला बजती जेवर भी उतरा हुआ है साफ साफ वजू के बयान में, भाग नंबर 1 पेज नंबर 40 पे।
چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.